Welcome everyone. Today, my name is Ankur, and today we are going to talk about the mental stability in failing civilization. What is that history has told us about the failing civilization, and what we should be doing in this era, as we are facing very difficult year as compared to our previous so many decades. This is our contact number. You can contact us for if you want to be a part of that WhatsApp group wherein we share the daily thoughts and the updates regarding the webinars. These webinars are absolutely free of cost. Okay, so this is going to be the itinerary for our today's session. Uh, in few minutes, I will talk about myself so as to assure you that you are in good hands. And then we will talk about little bit about history, what are the previous civilizations, how they have devastated, and what are the common factors that has been there in their fall, and what about our modern civilization, and how do we remain positive when everybody around us is actually falling apart. So the climate change is there, and there is World War III happening. So how can we remain positive during the session? This session is for 7 to 8 p.m. and we are also going to practice the meditation. Last few minutes we have kept for specifically for question answer sessions, and the language will be used primarily English, and at times I'll also be using Hindi language as well. Okay, and all participants will be muted while we conduct this session. And if you want further details of this course, this session is generally divided into three parts. This is just one of it. तो ये पूरा का पूरा सेशन आपका तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, और ये सिर्फ उसका पहला भाग है. Okay, this is about me. Like I said, my name is Ankur Chaturvedi, or I have served Infosys, American Express, HSBC companies. I've been a speaker for TEDx and American Society of Quality. This whole program is in association with Brahma Kumaris and is a part of the PhD program that I am doing. ये सारा का सारा हम ब्रह्मा कुमारीज के साथ एसोसिएटेड है, और ये एक हमारा पीएचडी प्रोग्राम है जो चल रहा है. तो यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट वर्कशॉप, and if you want to have the soft copy for Feeling Safe and World War III Dawn of a New Civilization, these two books, feel free to ping us on this below number. अगर आपको ये फ्री कॉपीज इस बुक की चाहिए तो आप हम लोगों को पिंग कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं माया सिविलाइजेशन की, जो कि वन ऑफ द एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमारी हिस्ट्री में रही है. इन्होंने स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स तक बना रखे थे. यहाँ तक कि इनको जो इनकी सिटीज थी वो स्टार्स की पोजीशंस के अकॉर्डिंग जो है डिफाइंड थी. और जो मायांस कैलेंडर है जिसके बेसिस पे हमारा पूरा मीडिया ये बात बोलता है कि 2020 में विनाश होगा या जो भी होगा, ये सिर्फ और सिर्फ माया के कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, जो कि हमने बीच में दिखाया हुआ है. इन्होंने करीबन 1800 बीसी से आफ्टर डेथ 250 तक किया है. और लाइक आई सेड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन, जिसके पास जो हम आज जो हमारे पास साइंस है, जो डेवलपमेंट है, उनसे कहीं ज्यादा उनके पास थी. तो आप देखेंगे कि इनका भी जो फॉल हुआ है, जब इनका बताते हैं कि ये क्यों, किस वजह से इनका पतन हुआ, उसमें एक सबसे बड़ा रीजन था कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम हो गए थे. और दूसरी बात ये बताते हैं कि जो इनके नेबर कंट्रीज थे, जैसे हमारे नेबर कंट्रीज हैं चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, उनके साथ और फैमिली रिलेशन में इनके जो है कड़वाहट आ गई थी, जिसकी वजह से इनका फॉल हुआ. और लास्ट है इन्वायरमेंटल चेंज. तो माया जो कि इतनी एक समृद्ध सभ्यता थी, उसमें आप देखेंगे क्लाइमेट, पॉपुलेशन और रिलेशनशिप्स, इसको लेकर इस सिविलाइजेशन का पतन हुआ है. अब अगर हम दूसरी बात करते हैं, अकेडियन एम्पायर, जो कि एक मेसोपोटामिया की करीबन 4000 साल पहले की सभ्यता थी, इसमें भी आप देखेंगे, जबकि ये तो पानी के ऊपर आप देखेंगे, ये ब्लू ब्लू हम लोगों ने दिखा रखा है नक्शे में,
ये एक पानी के बीच में एक सभ्यता थी, और जो कि वाटर रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से यूज करती थी। बहुत सारी नदियां, झील इन्होंने खुद बनाई थी। तो आप इनका भी देखेंगे कि इनके पास जो है ओवर पॉपुलेशन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से रिसोर्सेस कम हो गए थे, और इनका भी जो है सूखा पड़ा था, इनको बहुत ज्यादा सूखा, और जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी सभ्यता जो है साफ हो गई थी। उसके बाद अगर एक और बात करें, एंकोर वाट्स, इसको खमेर एम्पायर भी कहते हैं। ये सन 802 में स्टार्ट हुई और काफी साल लंबा टाइम चली है ये भी, और ये भी एक बहुत समृद्ध सभ्यता रही है अपने आप में। और इसका भी आप देखेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज था और प्राइमरीली वाटर, इन तीनों ही अंपायर्स में जो वाटर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है किसी भी सभ्यता को मिटाने के लिए। और कि कोई भी सभ्यता का जब अंत आता है तो तीन चीजें, एक उसका क्लाइमेट चेंज, जो इसमें हमने वाटर की बात करी, चाहे वो सूखा है चाहे वो बरसात है, और एक नेबर कंट्रीज के साथ उनके रिश्ते खराब होना, और एक ओवर पॉपुलेशन। तो ये तीनों ही चीजें जब किसी भी सभ्यता की पीक पे पहुंचती हैं तो वो सभ्यता चेंज होती है। मगर इसमें एक जानने वाली बात यह है कि कोई भी सभ्यता जब बदलती है तो ऐसा नहीं होता कि पूरी तरह विनाश हो जाता है या पूरी तरह हर चीज जीरो से स्टार्ट होती है। तो मायान्स के जो कैलेंडर की जो हमने बात करी, इसमें आप देखेंगे इसके बेसिस पे ये सारे के सारे हमारे भूगोल और मीडिया लोग जो बात करते हैं, ये अपने आप में एक गोल सर्कल है, इसमें कहीं पे भी ये एंड नहीं होता है। तो सिविलाइजेशन, एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन तो आती है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आपका विनाश होके जीरो हो जाता है। इसमें ये समझने वाली बात है, क्योंकि आज जब हमारे न्यूज मीडिया जो ये सब बात करते हैं, दे नेवर टॉक अबाउट दिस एस्पेक्ट कि इस यूनिवर्स में एवरीथिंग इज साइक्लिक। हर चीज एक साइकिल के उसमें घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज जीरो से स्टार्ट हो। इसी तरह से जब उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करी कि दुनिया की वास्तव में स्टार्ट कैसे हुआ, क्रिएशन की बात करी कि भगवान ने रची, तो वहां पे भी इतने सारे डिफरेंसेस इसीलिए आते हैं क्योंकि साइंस में हम ये मानते हैं कि हर चीज की शुरुआत होती है। जबकि आप देखेंगे कि चाहे इस यूनिवर्स में कोई भी चीज है, वो सारी की सारी साइक्लिक जो मोशन में हमेशा चलती रहती है। तो जैसे अभी हमने ये तीनों अंपायर्स की बात करी, जिनका जो पतन है, जो फॉल हुआ है, वो बेसिकली तीन चीजों को लेकर हुआ है। तो आज अगर आप हमारे आसपास देखेंगे तो हम भी इन्हीं तीन चीजों से जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। एक, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। दूसरा, जो अलग अलग देश हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो रहे हैं, चाइना रशिया एक तरफ हैं, और यूएस इंडिया ये सारे एक तरफ हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 की वो है। और क्लाइमेट तो ऑफ कोर्स, ड्रॉट ज्यादा आने लगे हैं, सूखा ज्यादा पड़ने लगा है, रेन ज्यादा होने लगी है, अर्थक्वेक ज्यादा आने लगे हैं। तो हमारा भी जो जो हमारी एक मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आप उसको अगर पहले की सिविलाइजेशन से कंपेयर करेंगे तो ये एक ऐसा लगता है कि जैसे सिविलाइजेशन चेंज है। हालांकि क्योंकि मीडिया को अपनी न्यूज बेचनी होती है, इसलिए वो विनाश की बात करते हैं, मगर विनाश नहीं होता है, चेंज जरूर होता है। तो हम देखेंगे कि किसी भी सिविलाइजेशन क्यों, किस वजह से फॉल हुआ है: ओवर पॉपुलेशन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रिलेशन स्पॉइल्ड, क्लाइमेट चेंज एंड मैनेजरियल इनकम्पिटेंस। का मतलब है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि जब कोई राजा अपने देश को नहीं चला पाता है तो वो एक मैनेजरियल इनकॉम्पिटेंस आता है। आप ये देखिए, आज हर एक देश में, चाहे वो कोई सा भी देश हो, वहां पे राइट्स हो रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं है कि जो उनका प्रेसिडेंट है। रशिया में पुतिन ने अपने आप को 73 ईयर्स के लिए घोषित कर दिया। ट्रंप के लिए वहां पे राइट्स हो रहे हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर करके। इंडिया में भी हिंदू मुस्लिम को लेके बहुत होते हैं। तो जब ये ऐसा होता है, एंड व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम द पास्ट इज दैट दिस सर्कल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हम, ये साइंस में भी एक थ्योरी है कि हम सारे के सारे एक इनफाइनाइट सर्कल में हम लोग घूमते रहते हैं। इसीलिए आप देखिए, हमारा यूनिवर्स में चाहे वो इलेक्ट्रॉन से लेकर सोलर सिस्टम हो, चाहे कहीं पे भी हो, हर चीज साइक्लिक है। इवन अगर आप ये बोलें कि अगर जो गॉड का जो एग्जिस्टेंस है वो भी, अगर आप गॉड को मानते हैं, अगर गॉड वास्तव में एग्जिस्ट करता है, तो सारी की सारी चीजें साइक्लिक ही होनी चाहिए। ओके। और राजयोगा मेडिटेशन में, जो हम लोग जिसके आगे हम आगे बात करेंगे,
उसके अंदर हम लोग यही बात करते हैं कि जब अगर हमें अपने आप को मेंटल स्टेबिलिटी बना के रखनी है, नाउ वी नीड दोज ट्रुथ्स एंड बिलीफ्स कि जिसके ऊपर हम खड़े हो सकें। ओके, सो वो उन ट्रुथ्स और बिलीफ्स के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ओके, नाउ जब हम मेंटल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो जब हम मेडिटेशन स्पेशली करते हैं, तो इट गिव्स अस द पावर टू कंट्रोल आवर डीएनएस। आप देखेंगे जैसे हमारे जो मदर फादर रहे हैं, उनके टाइम में इतनी ज्यादा बीमारियां नहीं आती थी, और हमारे टाइम में इस इतनी सारी बीमारियां आने लगी हैं, हम लोग, हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा डीएनए डिटेरिएट हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि हम अपने डीएनए को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि इम्यूनिटी तो आपकी तभी बढ़ सकती है जब आप अपने डीएनए को कंट्रोल कर सको। तो अगर मैं साइंस की भाषा में बात करूं कि हमारी बॉडी ऑर्गन से बनी है, ऑर्गन्स सेल से बना है, सेल्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड, एसिड के अंदर फिर दोबारा एटम्स वगैरह होते हैं। तो एटम और सेल की आप देखेंगे प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग होती हैं। हमारी बॉडी सेल से बनी है, एटम्स तो हर एक पूरी प्रकृति ही एटम्स ही है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि पूरी इस बॉडी को चला रही है? सेल्स अपने आप को कैसे चलाएंगे? वो तो एटम से बने हैं, और मैटर तो इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिस अवस्था में पड़ी है वो उसी में पड़ी रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो हमारी इस बॉडी में जो कि पूरी तरह एक एनर्जी है, वो कैसे, किस तरह से ड्राइव करती है, और किस तरह से हम अपना डीएनए स्ट्रक्चर तक चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये बताया हुआ है कि हमारी बॉडी के सारे सेल्स को वास्तव में जो एक पॉइंट ऑफ एनर्जी, जो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में दिखाया हुआ है, वहां से बैठ के वो पूरे शरीर को ड्राइव करती है। और आप देखेंगे कि जिस तरह से साइकोन्यूरोबिक या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जो हम बात करते हैं कि अलग अलग चक्र होते हैं, सो क्योंकि जो मैटर है वो भी हमारी इक्वल टू एमसी स्क्वायर, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि पूरा का पूरा जो शरीर है वो एनर्जी ही है, मैटर एनर्जी ही है इवेंचुअली। सो हम कुछ नहीं है, हम खुद एक एनर्जी हैं, और ये बॉडी एक एनर्जी को जिसको हम चला रहे हैं। तो ये सोल जो है वो पूरी बॉडी को किस तरह से चलाती है, वो यहाँ पे बैठ के, जो ये वॉयलेट यहाँ पे क्राउन चक्रा दिखाया हुआ है, क्राउन चक्रा पे बैठकर वो पूरे शरीर को चलाती है। और उसके मेन जो है 7, आप देखेंगे कि 7 शक्तियां होती हैं जिससे वो पूरे के पूरे शरीर को चलाती है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ज्ञान, सुख, प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता। तो हम में से जिस जिसके अंदर जो जो कमी है, उस हिसाब से उसको उस तरह की बीमारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें देखेंगे कि जैसे हमारा क्राउन चक्रा है, अगर क्राउन चक्रा जिसको ब्लिसफुल कहा जाता है, अगर इसमें हमारा प्रॉब्लम है, तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा। तो जितने भी बाकी दुनिया में जितने भी तरह के योग हैं, चाहे यहाँ पे हमने मुद्रा करके दिखा रखा है, या फिर यहाँ पे जो हमने चक्र करके दिखा रखा है, वो आपके सारे चक्रों को फोकस करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे एक कलर थेरेपी भी होती है, जैसे आप देखेंगे कि वॉयलेट इंडिको, तो वो इस कलर थेरेपी पे काम करते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप कलर थेरेपी पे काम कीजिए और आपका वो चक्रा इंप्रूव कर जाएगा। बट इवेंचुअली हमें ये समझना चाहिए कि वो हमारा चक्रा जो है वो वीक क्यों हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग से। तो हमारे अंदर जिस तरह की नेगेटिव थिंकिंग होगी, उस वही चक्र हमारा वीक हो जाएगा, और उसकी वजह से ही हमारे पूरे जितने इलनेसेस हैं वो सारे के सारे सामने आते हैं। आप देखेंगे कोविड को लेकर अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि वो हेलुसिनेशन तक कर देता है। अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो यानी कि किसी को खांसी बुखार बुखार हो जाता है, और उसको हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन माना उसको कुछ ना कुछ दिखाई पड़ने लग जाए। तो क्योंकि हमारे चक्रास जो है वो इतने ज्यादा वीक हो गए हैं उसको लेकर, कि हमारा जो क्राउन चक्रा है, जो पूरा का पूरा पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, जिसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, आपकी बाइपोलर आइडेंटिटी वगैरह सारे इस चक्र की वजह से होती है, वो चक्र वीक हो गया है। इसकी वजह से आप देखिए एक छोटी सी बीमारी जो है वो इतने बड़े लेवल पे आ गई है। तो राजयोगा मेडिटेशन में, ये राजयोगा, इसका नाम राजयोगा इसीलिए है कि सबसे बड़ा मेडिटेशन इसीलिए है क्योंकि आपके ये एक ही तरीके से आपके सारे के सारे चक्रास जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। वरना आप कोई भी अगर दूसरा मेडिटेशन करेंगे, वो कोई ना कोई एक चक्रा पे मेडिटेशन आपका फोकस कराएंगे, और इट्स अ हाफ हार्टेड अप्रोच। जो रूट में जो प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम तो ये है
कि आप देखिए कई सारे लोग हैं वो इस थ्योरी पे विश्वास क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उस चीज से उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं हम तो बिना चक्र इस नॉलेज के ठीक है, क्योंकि उनके बाकी जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव है। जैसे ही हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं तो हमारा वो चक्र जो है वो अपने आप एनलाइटन हो जाता है। तो अभी हमने जैसे बात करी कि ये जो टाइम है ये सिविलाइजेशन चेंज का है, और जब भी सिविलाइजेशन चेंज होती है तो वो लोग जो है नेक्स्ट सिविलाइजेशन में जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अभी आज भी आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में आज भी कुछ माया सिविलाइजेशन के लोग आपको मिल जाएंगे। तो जब ये इतना विनाश या जो भी डिवास्टेशन होता है उसके बाद जो आत्माएं जो बच जाती हैं, जो लोग बच जाते हैं, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो सरवाइव करता है और नेक्स्ट उसमें जाता है। तो अभी अगर हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है तो हमें इन अपने ये पावर होनी चाहिए कि हम अपने डीएनए को कंट्रोल कर सकें। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो आत्मा यहाँ पे बैठकर, जो सोल आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे बैठकर पूरे शरीर को चलाती है। और जो उसकी 8 शक्तियां हैं वो यहाँ पे केंद्रित होती हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए ये हार्ट चक्रा है, तो अगर किसी को लाइफ में ये रहा है कि उसको लाइफ में प्यार नहीं मिला, या मिला भी है तो उसको ये हमेशा लगता रहा है कि मुझे तो लाइफ में हमेशा मेरे साथ गलत हुआ है, हमेशा लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो उसका आप देखेंगे हार्ट वीक होगा। जैसे ये थ्रोट चक्र है, ये शांति का प्रतीक है। तो अभी अगर किसी के जीवन में शांति नहीं है, आप देखेंगे उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से, ये तो मैंने बहुत छोटा सा बताया, तो इस तरह से हर एक चक्र जो आपका चक्र जो आपका डिस्टर्ब है उसके हिसाब से आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आएगी। और इसी के जैसे आप देखेंगे यहाँ पे किसी ने मंत्र बता रखे हैं, किसी ने मुद्राएं बता रखी हैं, और ये कलर थेरेपी, इसके कौन सा कलर से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए मेडिटेशन में, वो है। या तो आप ये सारे तरीके अपनाइए। दूसरा ये है कि अगर हम नेचुरल तरीके से अपना एक लाइफस्टाइल ऐसा बना लें कि हमारे बिलीफ, हमारा सिस्टम ऐसा हो कि वो हमारा उस चक्र को फीड करे, तो हमें इस किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ना ही मुद्राओं की, ना किसी भी और तरह की मेडिटेशन की, या कोई भी चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो अब हम जो है प्रैक्टिस करेंगे निर्वाणा स्थिति की, जिसके के अंदर ही हम अपने आप को रियलाइज करेंगे कि आई एम अ सोल सिटिंग हेयर कंट्रोलिंग ऑल द चक्रास। और जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, आप अपने आप को उस तरह से गाइड करते जाइएगा। एंड दीज आर दी फ्यू बेसिक थिंग्स टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। हम इसके अंदर हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ थॉट्स कम करेंगे, क्योंकि देखिए चाहे वो कोई सी भी एलिमेंट हो, यहाँ तक कि एलोपैथी भी हो, कोई भी जो है थेरेपी, चाहे वो राजयोगा हो, चाहे साइकोन्यूरोबिक या एलोपैथी भी हो, वो तब तक काम नहीं कर सकती है जब तक कि हमारा उस पर विश्वास ना हो। आप देखिए एलोपैथी में भी तभी लोग कहते हैं कि इस डॉक्टर की मुझे दवाई लगती है, क्योंकि हमारा मन में ऐसा विश्वास है कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर सकता है, तो हम उसकी दवाई हमें लग जाती है। उसी तरह से अगर हम अपना डीएनए चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो मेडिटेशन से या किसी और से करना चाहते हैं, तो हमारा उसके अंदर विश्वास होना चाहिए, हमारा इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये चीज चेंज कर सकता हूँ। और वो चीज कैसे आती है? जब आपको उसकी थॉरो नॉलेज होती है, जब आपके मन में कोई भी डाउट ना हो, चाहे वो साइंस के परस्पेक्टिव से, चाहे रीजनिंग के परस्पेक्टिव से, किसी भी तरह से। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिकली अब हम अपने थॉट्स की फ्रिक्वेंसी को कम करेंगे। और अगर आप इसको थोड़ा सा भी चाहे 2 घंटे में 2 मिनट के लिए भी करते हैं, तो आपको ये एक पावर तो स्ट्रेट अवे 4-5 दिन के अंदर ही आप अपने अंदर देखने लग जाएंगे कि एबिलिटी टू विड्रॉ फ्रॉम सिचुएशंस ऑन विल। कि कोई भी सिचुएशन बाहर कैसी भी हो रही है, चाहे लोग चिल्ला रहे हैं, चाहे लोग खुश हैं, चाहे कुछ भी है, आप अपने आप को विड्रॉ कर पाएंगे उससे। आपको उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जो सबसे बड़ी चीज है, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत है, दैट इज टू अटेन पीस। एंड इसको करने के लिए सिट कंफर्टेबली, आप जिस भी पोजीशन में हैं आराम से बैठिए। इससे पोजीशन का फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। और ये चीज जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि कलेक्टिव मेडिटेशन जो होता है वो मच मोर पावरफुल होता है देन इंडिविजुअल मेडिटेशन। और आपके अंदर अगर कोई और थॉट्स आते हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, आपको लगता है कि मेरा लग नहीं रहा है, या तो ये सारे वेस्ट थॉट्स हैं। आप इनको काटने मत जाइए कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे वापस आना है। इनको ऐसे मत सोचिए, जस्ट लेट देम पास। ओके।
और अगर आपको फीलिंग स्लीपी होता है तो वो भी एक नॉर्मल चीज़ है, बस सोना नहीं है। और जब हम खत्म करेंगे तो आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं, जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होंगे। ओके, आई प्ले द म्यूजिक नाउ। जस्ट मोमेंट। I generally prefer doing with Om Dhwani, but you can play any music you want. There is no such restriction to it. Okay. Close your eyes, please. See yourself as a point of light. I am a soul, the controller of the body. Sitting in the forehead, shining like a star. Radiating peace. Peaceful vibes all across. I am a point of light, separate from the body. I am an emerald in the world of silence. I do not have any body. I am the only soul. I see light, red light. I am a point of light, shining star. This is a world of silence. Making me absolutely peaceful and silence.
I am a peaceful soul. I am a point of light, shining star, immortal soul. I see red light all around me. I am a powerful soul. Free from all the bondages. I am an immortal soul. I am full of all the energies. I am light, point of light. I feel peace, complete peace. Now, time to come back. Resume the control of your body. I am a soul. Sitting in the forehead. Slowly, you can open your eyes. Okay, so if I go back and talk a little more about it. So basically, this crown chakra, if I have felt the bliss, because crown chakra is all about feeling bliss, so then this chakra is my complete. If I am feeling bliss doing this, then I cannot have migraine or any psychological disorders. So if I already have it, I'm actually curing them by changing the very core nature of my DNA. And this is the science of Raj Yoga meditation. Okay. So as we move on, and what we did, it was actually sort of nirvana sthiti, wherein we have freed ourselves from everything, all the bondages. That is the nirvana sthiti. Okay.
Now the question is, that was about more of a crown chakra that we just did. Now, how can we stay optimistic or positive in the future? Because if you see, आप जिससे बात करते हो, लोग ज्यादातर ये बात करते हैं कि कोविड के पेशेंट्स इतने हो गए हैं, ये मिल रहा है, ये मार्केट में नहीं मिल रहा है, आने वाला टाइम क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जॉब्स रहेगा नहीं रहेगा। तो ऐसे टाइम पे हम ऑप्टिमिस्टिक कैसे रह सकते हैं? और ऐसा कौन सा बिलीफ है या ऐसा कौन सा थॉट है जो मैं अपने अंदर रखूं तो मैं हमेशा जो है ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा? तो आप देखेंगे कि अगेन ये बहुत ही बेसिक उससे स्टार्ट होता है कि गॉड इज द क्रिएटर। ये हम कभी इसके लिए सेशन रखेंगे कि वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो उसके अंदर हम ये डिराइव कर सकते हैं कि गॉड डू एग्जिस्ट। और अगर आप ग्रेविटी और आप मानते हैं कि ग्रेविटी है तो गॉड को भी आप उतना ही मानना पड़ेगा, मगर वी स्किप दैट पार्ट राइट नाउ। सो अगर गॉड इज द क्रिएटर, अगर मैं इतना विश्वास करता हूँ, देन ही इज द ओशन ऑफ लव एंड पीस। ओके, एंड हिज क्रिएशन रिफ्लेक्ट्स दैट। आप देखेंगे कि जैसे दा विंची ने मोनालिसा बनाई, तो उसके अंदर उसने कितने 25 या 50 इमोशंस डाले। और देखेंगे कि जो व्यक्ति जैसा होता है, उसकी रचना में चीज, उसकी क्रिएशन में वो चीज दिखाई पड़ती है। अगर आप किसी क्रिमिनल माइंडसेट के आदमी को बोलेंगे कि पेंटिंग बनाएंगे, तो वो थोड़ी वॉयलेंट पेंटिंग बनाएगा, अब्यूसिव पेंटिंग बनाएगा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पेंटिंग थोड़ा शांत है, तो उसकी पेंटिंग दूसरी होगी। तो अगर गॉड को हम कहते हैं कि वो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, तो उसकी क्रिएशन में ये चीज दिखाई पड़ती है। हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। और जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि कोई जितना बड़ा चित्रकार होता है और जितना बड़ा व्यक्ति होता है, उसके रूल्स भी उतने ही स्ट्रिक्ट होते हैं, उसकी क्रिएशन में कोई कमी नहीं हो सकती। तो ये सारी की सारी जो क्रिएशन है, इसके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो ओशन ऑफ लव एंड पीस है, तो इसके अंदर जो भी होता है वो अच्छा होता है। ये है सबसे बड़ा एक ऐसा पॉजिटिव थॉट कि अगर हमारे मन में ये चीज बैठी हुई है कि जो भी होता है वो अच्छा होता है, कुछ भी होता है इस दुनिया में, कुछ भी होता रहता है, वो सब का सब अच्छा है, उसके अंदर दो राय कोई है ही नहीं। आप इंस्पिरेशन के लिए चाहें तो ये कुछ क्लासेस हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड यू कैन गो थ्रू दीज क्लासेस कि कैसे इन लोगों ने ये ब्रह्मा कुमारी की ओल्ड आदरणीय जो है टीचर्स रही हैं, और किस तरह से इन्होंने कितने डिफिकल्ट डिफिकल्ट सरकमस्टांसिस होते हुए भी सिर्फ एक बल एक भरोसा कि भगवान है वही हमारा रक्षक है, उसके भरोसे पे कैसे इन्होंने जो है सारी चीजें पार करी। क्योंकि इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ बोलने से वो नहीं आता है। तो यू कैन लिसन टू दीज क्लासेस। और ये सिर्फ एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड, ये इतना बड़ा पॉजिटिव थॉट है। ये अगर आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो ये आपके जितने भी नेगेटिव थॉट हैं, ये सबको खत्म करने के लिए सिर्फ ये एक ही थॉट काफी है। या तो आप सबको अलग अलग खत्म कीजिए, जेलसी, हेट्रेड, एंड जो भी अलग अलग आते हैं, उसके बजाय अगर आप ये सिर्फ सोचे कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड, आई ट्रस्ट गॉड, उसने जो बनाया है सब अच्छा बनाया है। आप मेडिटेशन में भी आप एक एक चक्रा को इम्प्रूव कीजिए या फिर सिर्फ एक इस पे काम कीजिए, आपको बाकी चक्रास आपके अपने आप सही हो जाएंगे, जो बीमारी है वो सब सही हो जाएगी। क्योंकि जब आप अपने डीएनए को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी आपके हिसाब से चलना स्टार्ट कर देती है। और इसके अंदर लास्ट इसके अंदर हम लोगों ने ये बताया हुआ है कि जैसे जो माया की सिविलाइजेशंस थी, उन्होंने भी इसी बात के ऊपर एम्फेसाइज किया था। और इसी के चलते आप देखेंगे कि इन्होंने क्या कहते हैं, पूरा जो अपना कैलेंडर है वो इसी तरह से बनाया था। ओके, तो लास्टली हम लोग ये बात करते हैं कि जब भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन क्यों इफेक्टिव है। काफी लोगों को लगता है कि मेडिटेशन तो बस एक सोच होती है, और थॉट से आज तक थॉट से क्या होता है, रियल लाइफ तो अलग होती है। तो हम ये भूल जाते हैं कि जो एक थॉट होता है, वो जैसे जैसे वो इंटेंस होता जाता है, आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाती है।
ये बहुत एक फेमस स्टोरी है जिसके अंदर एक व्यक्ति था, गांव में था, और वो कुछ काम कर रहा था, तो उसको लगा कोई कांटा चुभ गया, तो उसने उसको जाने दिया कि चलो ये तो चुभता रहता है, बाकी अपना काम करता रहा। साल 2 साल बाद जाकर छत पे कुछ काम कर रहा था, जब कांटा चुभ गया तो साल 2 साल बाद जाकर पता पड़ा कि भाई वो तो सांप था। तो 2 साल के बाद जाके मर गया वो, तो उसको पता पड़ा कि मुझे सांप ने काटा था। तो हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल फॉलो वही करती है, जो जिस तरह का हम थॉट, और जितना वो इंटेंस होता जाता है, वो फिर थॉट हमारा इमोशन बन जाता है। तो जब हम राजयोगा प्रैक्टिस करते हैं, तो वो बिलीफ, जैसे हमने पीछे एक बिलीफ की बात करी, वो बिलीफ हम अपने अंदर इंस्टिल करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट फील्ड में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हम जो है प्रैक्टिस करेंगे स्टेप 2 मेडिटेशन, विच इज कॉल्ड राजयोगा। राजयोग, राज का मतलब होता है सबसे बड़ा, योग माने मिलन। तो अब हम राजयोगा की प्रैक्टिस करेंगे। मैं दोबारा से म्यूजिक चलाऊंगा, और इसके अंदर अब हम अपने आप को सुप्रीम पावर से कनेक्ट करेंगे। ओके, close your eyes please. See yourself as a point of light, a soul sitting in the forehead. I am in the world of silence. World of peace. The shining star. I see the God, Supreme Almighty. Who is shining like a sun. Radiating his rays all over me. I am a point of light. You are my Father. I am your creation. You are the supreme benefactor. Showering his different colors of rays all over me. I
feel contented. That God, the supreme power, Shiv, who is ocean of love, is protecting me. Receiving and absorbing the rays from Shiv. Shiv Baba, who is Almighty, Supreme. I feel blessed. That I know we all are souls, brothers. And Shiv Baba holds the responsibility. For my well being and of the world. This sweet remembrance of God Shiv Baba, that is my protection. That whatever happens is for good. All the powers and chakras are now enlightened. I am a peaceful soul. I am combined with Shiv Baba. Om Shanti.
come back to this body and gradually open your eyes. Okay, with that, we come to the end of our session. And if you want to join the workshop uh, as a part of my research, wherein uh, you just have to be at home and we will be doing meditation for you, and you just have to fill the chart. And again, it's absolutely free of cost. Then feel free to contact me. And if you have any